Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, listeners, as you know, this is an interactive program where we take all your questions, queries, and doubts that you may have on economic, business, and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock-specific queries. You can call us on 2331 4444. 23717106, and our third line is 23421050. And as always, you need to prefix the STD code of Delhi, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. Good evening, Harsh. नमस्कार, हाजिर है मार्केट मंच के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। सोमवार के दिन भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं अर्थ जगत के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। कोई भी सवाल हो आप सीधे पूछें। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खुले रखे हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 717 106 और 23 42 10 50। तीनों नंबर दिल्ली के लैंडलाइन नंबर हैं। इनके पहले 011 कोड डायल करें, अपने सवाल पूछें हमसे, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे SP शर्मा जी, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी। और इसके पहले कि हम श्रोताओं के कॉल्स लें, शुरू करते हैं प्रोग्राम अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ। The top stories. Domestic stocks witnessed modest gains amid mixed global cues. Sensex closes at 59,500 mark. Nifty settles near 17,650 level. The rupee appreciates to 81 rupees and 50 paise against the US dollar. And Brent crude remains steady to trade at around $88.70 per barrel. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज बढ़त रही है। सेंसेक्स 170 अंक बढ़कर 59,500 पर रहा, जबकि निफ्टी 45 अंक की तेजी के साथ 17,649 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की मजबूती रही है। $1 की कीमत 81 रुपए 50 पैसे। और कच्चे तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $88.70 रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज मामूली तौर पर बढ़त रही। सेंसेक्स 170 अंक की बढ़त के साथ 59,500 पर बंद हुआ। निफ्टी 45 अंक की बढ़त के साथ 17,649 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की गिरावट रही। 30 कंपनियों वाले सेंसेक्स के 17 कंपनियों में बढ़त रही है, जबकि 13 कंपनियों में गिरावट रही। बजाज फाइनेंस में सबसे अधिक 4.6% की तेजी रही। अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भी बढ़े हैं। दूसरी तरफ पावर ग्रिड के शेयर 3.4%, इंडसइंड बैंक के शेयर 2.6% और लार्सन एंड टूब्रो के शेयर 2.1% गिरे हैं। शेयर मार्केट की और जानकारी के साथ हैं रंगा। Yes, exactly. Well, as Harsh just mentioned, the Sensex and the Nifty today witnessed modest gains. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended at 59,500 mark. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange settled near the 17,650 level. Both stocks added amid mixed cues from the global share market. The Sensex rose 170 points or 0.29% to finish at 59,500. The Nifty 50 also added 45 points or 0.25% to close at 17,649. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.22%, while the small-cap index ended 0.1% down.
In the Sensex pack, 17 companies posted gains while 13 witnessed losses. Bajaj Finance was the top gainer as it rose 4.6%, followed by Ultratech Cement, which gained 2.5%. Bajaj Finserv added 2.2%. On the other hand, Power Grid fell 3.4%, followed by IndusInd Bank, which declined 2.6%. Larsen & Toubro fell 2.1%. In sectoral indices at the BSE, 8 sectors gained while 12 logged losses. IT sector gained 1%. Tech added 0.9%, while Telecom ended 0.7% up. On the other hand, utility sector tumbled 5.7% and power index plunged 5.3%. Oil and gas declined 4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,449 companies gained while 2,156 fell. Shares of 158 companies, however, remained unchanged. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन एसपी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। जी, आज जो मार्केट में गिरावट देखी गई थी पिछले हफ्ते, उसमें थमा तो जरूर और साथ ही 170 अंक की बढ़त भी रही है। आज के मार्केट के चाल पर, उतार चढ़ाव पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जैसे हमने देखा कि मार्केट में काफी फॉल हुआ था जो पीछे के दो लास्ट वीक के सेशंस थे, लेकिन मार्केट में आज कुछ स्टेबिलिटी, जैसे थोड़ी वॉलेटिलिटी एंड लेकिन वॉलेटिलिटी कम होते होते पॉजिटिव में क्लोज होना एक बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट सभी प्री बजट कंसोलिडेशन मूड में है कि जो आने वाला ट्रैजेक्टरी है, जो आने वाला सिनेरियो है, जो आने वाली रिफॉर्म्स प्रोसेस है, उसके लिए इंतजार है और मार्केट सब इस लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कल, क्योंकि बजट के एक दिन पहले का कल का सिनेरियो भी वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन मार्केट का जो ब्रेथ है, जो मार्केट का मूड है, वो एक्सपेक्टेशंस के साथ है। मतलब मार्केट इज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बजट। राइट जी, इसका ये भी मतलब है रंगा कि मतलब छोटी मोटी जो खबरें आती हैं जिसकी वजह से एक दिन या 2 दिन मार्केट थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, उसका बहुत लंबे समय तक पूरे मार्केट के पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रांग फुटेज पर हैं और हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफी तादाद में मार्केट में लगे हुए हैं और पूरा भरोसा रख रहे हैं, इजंट इट? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो मार्केट में न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी आती है वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करती, क्योंकि मार्केट के जो फंडामेंटल्स है, मार्केट का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ है और ग्रोथ के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का अट्रैक्टिवनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसकी वजह से मार्केट में कोई ऐसी वीकनेस नहीं आती कि मार्केट एक बड़े स्तर पे लुढ़क जाए और उसके बाद मार्केट में कोई संभाल नहीं है। तो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रांग है, लेकिन न्यूज बेस्ड थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट है तो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर तो बनता है जब कोई नेगेटिव न्यूज या कुछ ऐसा अनसर्टेन न्यूज मार्केट फेस करती हैं तो। Right. Well, let's start taking phone calls now. And joining us first this evening is Mr. Prajapati from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. थैंक यू सर। Yeah, go ahead. Put your question. नमस्कार सर, मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा जी। कि जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध में के कारण काफी चीजें महंगी हुई थी, वहां से क्या क्या सामान ऐसा आता है कि जिससे हमारी काफी अर्थव्यवस्था में महंगाई के हमें महंगे सामान मिलने शुरू हो गए थे? क्या वो महंगा सामान अब युद्ध कम हो गया तो उसके बाद कुछ कम होने की उम्मीद होती है कि कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक? और दूसरा सवाल ये है कि बैंक में अगर फ्रॉड हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, उसमें हमारे को हम कितने सुरक्षित है? हमारा पैसा 20 लाख रुपया है तो गवर्नमेंट ने हमें 5 लाख की इंश्योरेंस दे रखी है, तो हमारे 15 लाख तो डूब जाएंगे क्या? वो पैसा डूबा हुआ पैसा, अगर ऐसा तो होने के चांस नहीं है, फिर भी एक मन में जिज्ञासा है कि ऐसा हो जाए तो 15 लाख रुपए हमें कहाँ से फिर मिल पाएंगे? Yes, Dr. Sharma. देखिए, जो आपका यूक्रेन से रिलेटेड प्रश्न है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो कीमतें बढ़ी थी वो यूक्रेन से जो सामान आता है उसकी ना अवेलेबिलिटी हो उसकी वजह से नहीं हुई, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध ने, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, उसने जो अनसर्टेनिटी पैदा की, जिसकी वजह से जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थे जो ऑलरेडी
ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से एकदम से शूट कर रहे थे पिछले 2 साल से, तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जब उसके साथ क्लब हो गए तो प्राइसेस और भी शूट अप हो गए, प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हो गई, प्राइसेस में बहुत तेजी आ गई। लेकिन जैसे ही एक सिंक्रोनाइज्ड मूव आया, जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अपने जो पॉलिसी रेट थे वो इंक्रीज करने शुरू किए, तो जो कार्टल्स थे जो ऐसे करके जो प्राइसेस को एस्केलेट कर रहे थे, तो उनके जो हौसले थे वो टूट गए और उन्होंने अपना जो प्राइसेस को वो सस्टेन नहीं कर पाए, उनको जो कॉस्ट ऑफ कैरी था वो ज्यादा होने लगा, जिससे प्राइसेस फिर करेक्ट हुए और एकदम से तेजी के साथ करेक्ट हुए, क्योंकि डिमांड तो थी नहीं इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। यही कारण था। लेकिन हम तो यूक्रेन के साथ तो हमारा कोई मिनिस्क्यूल ट्रेड है, हमारा कोई ट्रेड सिग्निफिकेंट है ही नहीं है, $2-3 बिलियन की कोई बात नहीं होती है। तो प्राइसेस जो इंक्रीज हुए थे, जो एस्केलेट हुए थे, दोज वर ओनली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and the high inflation. Yeah, and Dr. Sharma, like Ukraine has always been, traditionally known as the breadbasket of Russia for its production of wheat. So surely that would have had an impact on the availability and prices of, wheat globally, isn't it? Yes, that is the one thing, because that is the global thing which is happening between Russia and Ukraine, not only for the Indian economy, that is happening for the whole world. But I am saying that prices, why the prices were escalated or high, or inflation was high in Indian economy, that was not only because of the imports from Ukraine, that's why prices are going up. Right. The prices were going up because of the global inflation and high and skyrocketing global commodity prices. That's right. Yeah, and he also spoke about deposit insurance. Ji. Yeah, what would you like to say? He said that, the government insures it up to only 5 lakh rupees. Ji. That is I think, question related to the banking sector. I do not know anything much regarding this, because these are the ROMs and set up by the government and the banking sector. So that has to be discussed with some banks. Right. Let's move on and take a next caller. We have N.R. Prasad joining us from Bangalore. Good evening, Mr. Prasad. And what's it that you would like to talk about? 2 questions I have. Yeah. About a couple of weeks when I talked, you suggested to invest in mutual funds of the foreign like Korea and Taiwan or even US. Yeah. I want to know at least a few of those names of those companies where I can invest. Right, Mr. Prasad, today, we are taking general questions on the economy and business, and we have a dedicated program on mutual funds, which is there on Sundays, which is a staple. Maybe you can call up next Sunday and talk to our mutual fund expert and get your answers. गुरुनाथ जी हमारे अगले कॉलर होंगे। गुरुनाथ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थाने से आप हैं जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, एसपी सर को भी नमस्कार। जी नमस्कार गुरुनाथ जी, नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन था, अभी जो 2 दिन पहले जो गिरावट देखी गई सर, और ये जो हमारा जो आर्थिक बजट आने वाला है, अभी सेशन चालू होने वाला है, तो सर ये मार्केट पे कितना, इसका मतलब किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं, और मार्केट क्या रुख रहेगा आर्थिक बजट की वजह से? थैंक यू सर। देखिए, मार्केट के बारे में जो आपने पूछा कि पीछे काफी गिरावट देखने को मिली, वो जरूर है कि गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि आगे बजट आने वाला है और कुछ ग्लोबल जो न्यूज है वो आके थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हैं कि लोगों में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है कि मार्केट काफी हाई स्तर पे है, तो क्यों ना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, और आगे बजट भी आने वाला है। और जिस तरीके से मार्केट्स ने आज कंसोलिडेट किया, तो एक बहुत ही पॉजिटिवली एक मार्केट्स ने आज बिहेव किया है कि आने वाले बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और हम काफी उसके लिए जो अपना जो मार्केट का मूड है, जो हमने देखा कि एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। तो बजट अब कैसा रहेगा, बजट के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये अगला जो साल है वो इलेक्शन ईयर है। तो इस बार जो ज्यादातर जो बातें हैं वो है कि सरकार एक बहुत बड़ा वेलफेयर बजट लेके आएगी, जिसमें हर एक वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। ये तो हर एक साल ही होता है, हर एक साल सरकार कुछ ना कुछ हर एक वर्ग के लिए अनाउंस करती है। लेकिन डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए शायद कुछ
मिडिल क्लास को या टैक्स रिबेट्स में कुछ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने का प्रयास करें, जिससे कि इकोनॉमी में एक मोमेंटम बने, कंजम्पशन इंक्रीज हो, फैक्ट्रीज का जो उत्पादन है वो इंक्रीज हो, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो। तो ये सब चीजों के ऊपर खास तौर पे नजर है और आशा है कि सरकार इन चीजों के ऊपर गौर करेगी। और ये जरूर है कि बजट जो है एक बहुत ही लुक्रेटिव बजट रहेगा और एक आशापूर्ण जो अभी चलन है उनका वो रहेगा। जी राइट। राम स्वरूप joins us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछ लें आप राम स्वरूप जी। सर, कल हमने न्यूज में सुना था, कल 1-2 दिन पहले, कि हलवा खिलाया जा रहा है जी बजट आने से पहले जी। वो एक तो इसके बारे में हमारे को जानकारी दीजिए, हलवा कैसे क्या होता है जी जी ये दीजिए जी। और हलवा कितना मीठा होगा ये बताया जाए। तो शर्मा साहब, ट्रेडिशन है, हमारे एक्सपर्ट शर्मा जी बताएंगे। हलवा खिलाना तो एक ट्रेडिशन है, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के पहले ऐसा कहते हैं कि मुंह मीठा हो जाए, और जब बजट का पत्र छपाई के लिए जाता है तो एक हलवे की रस्म होती है, और इस रस्म के बाद जितने अधिकारीगण या जितने लोग बजट से अटैच रहते हैं सब क्वारंटीन में चले जाते हैं, मतलब उनका बाकी संसार से नाता टूट जाता है जब तक बजट पेश न हो जाए। विशेष एसवी शर्मा साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएं और फिर बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की बजट की। आज इसी की बात हो रही है। हाउ स्वीट वुड बी द बजट। यस डॉक्टर शर्मा। बजट के बारे में मैंने एक्सपेक्टेशंस आपको बताई हैं कि जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो होती है कि सरकार कुछ टैक्स में राहत दे दे, तो उसके लिए इस बार भी काफी पुरजोर से एक्सपेक्टेशन है कि सरकार बहुत बड़ी चीज कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट कर देगी, जिससे कि जो टैक्स स्लैब्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, सरकार उसमें टैक्स रिबेट दे देगी। ये एक्सपेक्टेशन हर एक साल होती है, इस साल भी है। इस साल कुछ ज्यादा है क्योंकि पीछे के 2-3 साल बहुत ही डिफिकल्ट रहे हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन भी रहा है, तो काफी इकोनॉमीज ने जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको इन्फ्लेशन से इंडेक्स भी किया है, थोड़े इंक्रीज किए हैं जो टैक्स स्लैब्स हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन था। जैसे हलवा की बात की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हलवा में मिठास तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जैसा भी हलवा पेश करे तो मिठास तो आपके अपने मुंह से ही वैसा ही मिठास आएगा जैसा आप लेना चाहेंगे। Right. Let's move on and take our next caller. We have Harish joining us from Delhi. Good evening, Harish, and what's your question? सर, मेरा क्वेश्चन है जो आपके एक्सपर्ट है इनसे जी। तो आजकल ही काफी टाइम से मतलब प्रगति या विकास की बातें चलती हैं जी, और विकास के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट है, उसमें अब आप लोगों की क्या राय है, विशेषकर एक्सपर्ट जो है आपके? जी, आपके भी एक्सपर्ट है, हम सबके एक्सपर्ट है। आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि डॉलर की जो प्राइस है आजकल 82 के आसपास है जी। आपने बताया कि 81 पैसे 50 पैसे के आसपास बताया जी। ये तो है, ये फॉरेन ये अमेरिकन करेंसी जी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। हरीश जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है और स्पष्ट हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो। जी जी, बोलिए। हमारा रुपया इतना पीछे रह गया, 10-15 साल पहले शायद यही था 50 के 51 के आसपास था, तो इससे तो पता नहीं चलता कि विकास कहीं हो रहा है। प्लीज आप एक्सपर्ट्स की क्या व्यूज है बताइए। यस डॉक्टर शर्मा, द फॉरेक्स सिनेरियो। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि पीछे के जो 3 साल थे 2020 से लेके 20, 21, 22 बहुत ही डिफिकल्ट ईयर थे। मेरे ख्याल से जो पिछले 100 साल में ऐसा डिफिकल्टी नहीं फेस किया अर्थव्यवस्थाओं ने जैसा पिछले 2-3 साल में किया है, खास करके 2020-21 में। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब लिक्विडिटी की जरूरत थी, जब सरकार ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जब हम एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी में डालते हैं और ऊपर से जो इंटरनेशनल करेंसी है जो डॉलर है, डॉलर की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते यूएस की जो डॉलर की स्ट्रेंथ है उसको बहुत सारी जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसी थी वो इम्पैक्ट हुई। आप अप्रिशिएट करेंगे कि रुपये उतना नहीं गिरा जितना दूसरे करेंसीज को इम्पैक्ट हुआ।
तो रूपी के ऊपर जो रूपी 73, 74 से आगे डेप्रिशिएट होते होते अभी हम 82 पे देख रहे हैं। तो ये एक जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके बदौलत ये रूपी में चेंज आया है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा और हम बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि हम डिमांड जो है अपनी बाहर से ज्यादा पूरी करते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो एनर्जी का डिमांड है 80% डिमांड इज कमिंग फुलफिल्ड बाय दी फॉरेन मार्केट्स। तो उसकी वजह से रूपी के ऊपर और प्रेशर बना, जिसकी वजह से वो और डिसेलरेट हुआ। तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कम हुई है और हमारी जो ग्रोथ है वापस इंटैक्ट हुए, तो रूपी आपको स्टेबल भी दिखाई दे रहा है कि अभी और ज्यादा इसमें गिरावट, हम फ्री फॉल नहीं देख रहे। तो आने वाले टाइम में हमें एक्सपेक्टेशन है कि रूपी वापस एप्रिशिएट करके एक अपना रैशनल जो लेवल है उसको अचीव करेगा। तो इसमें कोई फंडामेंटली हम कमजोर नहीं है, फंडामेंटली हमारी कोई वीकनेस नहीं है। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स है कि जिसकी वजह से जो करेंसीज में है, जो इमर्जिंग मार्केट के करेंसीज है, उनमें काफी करेक्शन देखने को मिली थी। और रुपया न सिर्फ स्टेबल है बल्कि आज इसमें बढ़त भी देखी गई और डॉलर के मुकाबले रुपये में आज 2 पैसे की मजबूती रही। $1 की कीमत 81 रुपये 50 पैसे दर्ज की गई। डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकी डॉलर की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपनी मजबूती प्रदर्शित करता है, आज मामूली रूप से गिरा है। दिन के कारोबार के समय ये 101.85 पर ट्रेड हो रहा था। And let's continue with our phone calls. We have Gaurav joining us from Ghaziabad. Good evening, Gaurav. And what's the issue that you want to discuss? Good evening. Sir, my question is about budget event itself. Yeah. The question is, we do not hear much about budgets, in America, in Germany, in France, in developing countries. Mm-hmm. We hear always about budgeting in India. Mm-hmm. Every year tweaking the system. Why do you have to tweak every year the system? Why do tweaking the taxes? एक बार करके 5 साल तक सरकार चले, बीच में छोटा बहुत चेंजेस करे या ना करे, बिकॉज चेंजेस एवरी ईयर क्यों करे जाते हैं? हम तो कहीं नहीं सुनते बाहर के देशों में बजट आ रहा है। थैंक यू सर। ये हमारे यहाँ ही क्यों होता है? Dr. Sharma, he has put a big question. Why budget at all? मैं इनको बताना चाहूंगा भाई साहब को कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अभी हम उतनी एडवांस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी अभी नहीं है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि भी हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की अपेक्षा रखते हैं। हम तब जाके हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएंगे। तो ऐसे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहां पे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जहां पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है, जहां पे जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है उसको भी आगे बूस्ट करने की बात होती है, जहां पे लोगों को ये चेष्टा रहती है कि उनके इनकम लेवल्स इंक्रीज हो, उनके पास ज्यादा बचे। तो ऐसी चेष्टाओं के साथ तो बजट का इंतजार ज्यादा रहता है ऐसी प्रणालियों में, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में। और जहां तक आपने पूछा कि 5 साल के लिए, क्योंकि जब भी हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हम 140 करोड़ लोगों का देश है, तो हमें एक प्रोजेक्शन लेके चलना पड़ता है कि हम इस साल में कितना हमें आमदन होगी, कितना हम खर्च करेंगे, और जो हमारी आमदन है उसको हम कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, क्या क्या सेक्टर है, किस सेक्टर को ज्यादा बूस्ट करना है, कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा वर्ग है जहाँ पे कुछ ऐसे वीकनेस दिखाई दे रही है, उसके लिए ज्यादा कुछ देने की जरूरत है। एक इकोनॉमी में बैलेंस करना होता है, तो उसको हम लंबे समय के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद सोचेंगे कि कैसा रहा। हमें उसके ऊपर बार बार विचार करके हर एक अमाउंट रखना पड़ता है कि हम इस साल इस अमाउंट में अपना गुजारा करेंगे और उसमें से हमारे पास इतना है और इतना हमें पर्याप्त करना है, मतलब उसको जनरेट करना है। फिस्कल डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं कि इतना हमें और जुटाना है। तो ये सब चीजें होती हैं जिसकी डेवलपिंग इकोनॉमी में। शर्मा साहब, आप यही बता रहे हैं कि एक नीड्स असेसमेंट लगातार करनी पड़ती है, जो सरकार कर रही है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, इसलिए यहाँ का बजट बेहद इम्पोर्टेंट है।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों सहित वैश्विक बाजारों का असर लगभग सभी यूरोपीय बाजारों पर पड़ा है। जापान का निकेई संवेदी सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की तेजी रही। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% गिरा। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी 1.4% की गिरावट देखी गई, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग भारी 2.8% की गिरावट दर्ज कर रहा है। And Santosh joins us next from Kanpur in Uttar Pradesh. Good evening, Santosh, and welcome to Market Mantra. जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये जानना चाहते हैं जैसे कोई डिस्ट्री है तो क्या वो खाता अपना मतलब एकल खाता नहीं खुलवा सकता है, ज्वाइंट खाता खोलेगा उसका? सॉरी, could you repeat your question, Santosh? Hello, Santosh, are you there with us? I believe अभी इनसे संपर्क कट गया है। तेल की क्या हालत है रंगा? Why not? Yeah, let's take a look at the energy scenario. Oil today remained steady amid looming interest rate hikes by major central banks. Signs of strong Russian exports was balanced by rising tensions in West Asia over a drone attack in Iran and hopes of higher Chinese demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.70 per barrel, while WTI crude price was at $79.70 per barrel. और सोने की कीमत में आज 60 रुपए की गिरावट रही है। एमसीएक्स में आज सोने का कारोबार 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ। ये सोना फरवरी का था, जबकि सिल्वर फ्यूचर की कीमत में 160 रुपए की बढ़त रही और मार्च के लिए ये 68,490 रुपए प्रति किलो पर रही। इधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना प्रति आउंस $1,938.10 रहा, जबकि चांदी वहां $23.75 प्रति आउंस रही। And joining us next is Atanu Shah from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. My respected everybody. Good evening. My question is, what do we expect on per capita expenditure on education, matter of budget? Thank you. Okay. Yes. It's a very good question because education is a major growth driver of any economy to move forward with strong growth trajectory. So government is focusing on education, and the government announces so many reforms and the increased allocations for the education sector every year to promote the education system and to promote the skill development in the country. So this year also we are expecting that the government should focus on the higher education, like institutions for the higher education, and particularly we are expecting that R&D activity should be enhanced in the economy so that the economic systems and the innovation system becomes more robust and the economic growth becomes more strong to compete in the international market in this difficult scenario. So R&D activity plus increased allocations for the education sector and announcement for the strengthening of the institutions, particularly the higher education, is expected from the forthcoming budget. Yeah. And Dr. Sharma, very briefly, even primary education is under sharp focus from the government, isn't it? Yes, government, according to the new education policy, now the reforms for each and every segment are required. Why I am focusing on the higher education? Because at the higher level there are a lot of challenges also. Sometimes people go beyond out of India for the education. So the focus of the government to enhance the infrastructure for the education is much needed. Right. आज के लिए मार्केट मंत्र में इतना ही। एसपी शर्मा साहब, आप हमसे जुड़े, श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सारे लिसनर्स, आपने सवाल पूछे, मार्केट मंत्र से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। Domestic stocks witnessed modest gains amid mixed global cues. Sensex closes at 59,500 mark. Nifty settles near 17,650 level. The rupee appreciates to 81 rupees and 50 paise against the US dollar, and Brent crude remains steady to trade at around $88.70 per barrel. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar.
Market Mantra.